Hello guys, welcome to BioIns classes. So today we are going to discuss about a very important topic that is a novel coronavirus. So in this lecture we are going to discuss about introduction of virus, general genetic material of virus, overview of coronavirus, taxonomy, history, classification, transmission, vulnerable group, pathogenesis. So before starting novel coronavirus, let us understand what is virus. Virus क्या है? Virus are obligate intracellular parasite, which means they cannot replicate or express their gene without the help of living host. यहाँ obligate का मतलब क्या है? Obligate का मतलब है strictly. इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल एंड पैरासाइट्स मीन्स दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म पे, अदर होस्ट पे, अदर लिविंग होस्ट पे डिपेंड होते हैं। इसका मतलब क्या है? वायरस वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म है जो स्ट्रिक्टली डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे लिविंग होस्ट पे डिपेंड होते हैं। Okay, and second is the virus can infect all living form including animal, plant, microorganism like bacteria and archaea. वायरस जो इन्फेक्शन जो करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वायरस सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं या ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। इट में ऑल्सो इन्फेक्ट प्लांट्स और साथ ही साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड आर्किया। Bacteria are prokaryotic microorganisms which with different shape, size, different pathogenesis, different morphology, different characteristic. And archaea are the prokaryotic organism with lack of defined nucleus. Bacteria have a peptidoglycan layer as they have ether bond with the branching of aliphatic acid, and archaea have a lipid membrane. They have ether bond with a fatty acid. And the third is viruses are generally much smaller than a bacteria. इट मीन्स जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन वायरस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कई गुना छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, with the diameter of 220 nanometer, measles virus is about 8 times smaller than E. coli bacteria. Second, 45 nanometer of hepatitis virus is about 40 times smaller than E. coli. And the third is the polio virus. 30 nanometer across is about 10,000 times smaller than a grain of salt. And next is we will discuss about the general virus genetic material. अभी हमने वायरस पढ़ा ही है। जनरली चाहे जितने भी टाइप के वायरसेस हो, हर वायरसेस के अपना अपना अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इधर दे हैव डीएनए और आरएनए। वायरस के पास कभी दोनों एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते हैं। The virus that contain DNA as a genetic material is known as DNA virus, and the virus that contain RNA as a genetic material is known as RNA virus. Remember, virus do not carry both as a genetic material. And whether it is DNA or RNA virus, they may be either positive sense or negative sense. Positive sense viruses are known as positive sense virus, and the negative sense the virus that contain negative sense is known as negative sense virus. And next, so guys, now we are going to talk about the overview of novel coronavirus. Why novel coronavirus? अभी तक जितने भी कोरोना वायरसेस है उसके कंपैरिजन जो ये वायरस है वो न्यू है, इसलिए इसे हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। हियर नोवल मीन्स अ न्यू। The name of virus is SARS-CoV-2 and the disease caused by SARS-CoV-2 is COVID-19, coronavirus disease of 2019.
Here COVID came from corona, VI came from virus, D came from disease, and 19 came from the year 2019. 2019 में पहली बार ये डिजीज हुआ, इसलिए इसके पीछे यहाँ हम 2019 के लिए के वजह से यहाँ पे 19 हम वर्ड यूज कर रहे हैं. December 31, 2019 नोवल कोरोना वायरस. December 31, 2019 को उस टाइम पे इसे 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाने जाते थे. In February 11, 2020, COVID-19 by WHO. February 11, 2020 को WHO ने इसे COVID-19 नाम दिया गया था. February 11, 2020 renamed as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2 by International Committee on Taxonomy of Viruses. इसी टाइम पे जिस टाइम WHO ने इसे नाम दिया गया था COVID-19, उसी टाइम पे उसी दिन इसे अगेन रीनेम्ड दिया गया था एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 और SARS-CoV-2 बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस. अब जो ये नाम दिया जाते हैं, दैट इज वायरस के नाम चाहे डिजीज के नाम, they are depend on different categories. Like the name of virus are based on the genetic structure of virus to facilitate the development of diagnostic test, vaccine, and medicine. And the name of virus are given by the International Committee on Taxonomy of Viruses. And the name of disease, they are named. ये जो disease की जो नाम देते हैं, they are named to enable the discussion on disease prevention, spread, transmissibility, severity, and treatment. And they are given by WHO, named by WHO in International Classification of Disease, that is ICD. Next, it is a zoonotic transfer disease, but there are 6 different types of coronavirus that infect human. Here zoonotic transfer disease means जो भी डिजीज हमें एनिमल से ट्रांसफर है ह्यूमन पे, उसे हम कहते हैं जूनोटिक ट्रांसफर डिजीज. लेकिन डिफरेंट 6 टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब वो एनिमल से नहीं, डायरेक्टली ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, the novel coronavirus which originate in Wuhan was named for their crown-like spike on their surface. जो नोवल कोरोना वायरस है सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुए थे? इट वॉज ओरिजिनेटेड इन वुहान, चाइना में. एंड जो इसका जो नाम दिया गया है, इट वॉज बेस्ड ऑन द स्पाइक ऑन देयर सरफेस. जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर सरफेस में एक कांटे टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं जिसे हम स्पाइक कहते हैं. उसी बेसिस में इसे नाम दिया गया है नोवल कोरोना वायरस. In the year 1918, the pandemic influenza virus, Spanish flu, ravaged the entire world, killing an estimated 50 million individuals and causing mass panic. जो नोवल कोरोना वायरस है, जैसे ये वर्ल्ड वाइड बहुत स्प्रेड हुए हैं, उसी तरह इन ईयर 1918 को पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वायरस क्या किया गया था, पूरे एंटायर वर्ल्ड फैल गए थे एंड किल, इसके वजह से 50 मिलियन इंडिविजुअल को किल किया गया था. उस टाइम पे 50 मिलियन लोगों का डेथ हो गए थे. सो लाइक नोवल कोरोना वायरस इन पास्ट 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस डिड द सेम थिंग. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉक्सोनॉमी. टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस. टॉक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टॉक्सोनॉमी का मतलब है अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट? वायरस का अरेंजमेंट. सो जितने भी डिफरेंट वायरसेस हैं, चाहे वो डीएनए वायरस हो, चाहे वो आरएनए वायरसेस हो,
हर एक वायरस के अपने स्ट्रक्चर होते हैं, अपने मॉर्फोलॉजी होते हैं, अपना हर एक तरीका सबका अलग अलग होता है। तो उसी जो ये वायरस है, नोवल कोरोना वायरस है, दे बिलोंग टू सब फैमिली ऑर्थो कोरोना विरिडी, फैमिली कोरोना विरिडी, ऑर्डर नीडोवायरस। जो ये कोरोना वायरसेस है, इसके अलग अलग सब फैमिली है एंड ऑर्डर है। नेक्स्ट, द जीनोम, द कोरोना वायरस का जो जीनोम है, द जीनोम ऑफ कोरोना वायरस इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 27 to 32 kb in size and they are host specific। जो ये कोरोना वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल, इसका जो जीनोम है, ये पॉजिटिव सेंस है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, आइदर वायरसेस में भी पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो ये जो कोरोना वायरसेस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये पॉजिटिव सेंस है एंड दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस जो कोरोना वायरस है, दे हैव a genetic material that is RNA, not DNA, and their size is 27 to 32 kb and they are host specific। होस्ट क्या है? होस्ट मतलब है यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बॉडी। इनके लिए जो टारगेट साइट होता है, दे आर स्पेसिफिक। जो एनिमल को करते हैं इन्फेक्शन, वो एनिमल को ही करेंगे, और जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, वो ह्यूमन को ही करेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा म्यूटेशंस भी देखा गया है वायरसेस में। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है कोई भी एबनॉर्मलिटीज, कोई भी चेंजेस इन अ जेनेटिक मटेरियल, उससे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वायरसेस में कुछ ऐसा म्यूटेशंस भी देखा गया है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल वायरस आरएनए वायरस जीनोम। जितने भी आरएनए वायरसेस हैं, उस ओवरऑल जितने भी आरएनए वायरस है जीनोम में, उसमें से ये जो वायरस है, ये सेकेंड लार्जेस्ट वायरस में इंक्लूडेड है। एंड द नेक्स्ट इज द जीनोम इनकोड फॉर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। जो ये वायरस है, वायरस कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। इसके पास वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है, जिसके अलग अलग फंक्शंस है। पहला प्रोटीन है एनवेलप प्रोटीन। यहां मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये वायरस का स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दिखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ नंबर ए, जो पॉइंट ए जो है, दैट इज एनवेलप्ड प्रोटीन जो है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये है, दिस वन इज द पिंक वन, दिस वन इज द एनवेलप्ड प्रोटीन। एंड सेकेंड इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम एम से डिनोट करते हैं, जैसे एनवेलप्ड प्रोटीन को हम ई से डिनोट करते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम एम से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिखने को मिल रहा है। डायग्राम में देखिए आप, ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का जो दिखने को मिल रहा है, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड द थर्ड इज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये वायरस है, वायरस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहे हैं, दैट दिस इज वायरल आरएनए, ये वायरस का आरएनए है। एंड जो ये ब्लू कलर का उसी को जो कवर कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। एंड द लास्ट वन इज स्पाइक प्रोटीन, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। यहाँ स्टार मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे जो स्पाइक है, दिस वन इज द व्हाइट वन। सबसे ऊपर देखिए आप, ट्राइमेरिक स्पाइक प्रोटीन है, सबसे ऊपर जो व्हाइट कलर का है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये वायरस को एक एडिशनल प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कंटेन करता है, जो हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है इन फ्यूजन के लिए एंड इन एंट्री प्रोसेस। वायरस को इन्फेक्शन करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए, तो ये क्या करता है, एक टाइप का एडिशनल प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि फ्यूजन में हेल्प करता है। फ्यूजन की वजह से क्या होता है, ये फर्दर हेल्प करता है वायरस को एंट्री करने में। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमने वायरस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि इसके वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे है, किस फॉर्म में है, कितने टाइप्स ऑफ इसके स्ट्रक्चर प्रोटीन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। फ्यू पीपल थिंक कि जो अभी जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो न्यू है, बट दिस इज नॉट ट्रू। सबसे पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स,
जो हुआ था अराउंड बिटवीन 2002 टू 2003 के बीच में ये हुआ था. इट वॉज ओरिजिनेटेड इन प्रोविंस ऑफ चाइना. ये भी चाइना में ही शुरू हुआ था. एंड ऐसा माना जाता था कि इट वॉज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ बैट टू सीवेट एंड सीवेट टू ह्यूमन. एंड मोर देन 8,000 total infected and 774 were death and the fatality rate was 9.6. सबसे पहले जैसे कोरोना वायरस है अभी जो कोविड-19 है, उसी तरह पहले इन पास्ट 2002 एंड 2003 के टाइम पे, उस टाइम पे जो हुआ था इन्फेक्शन जो हुआ था उसे हम वायरस के नाम से हम सार्स कहते हैं, जिसे हम जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. जिस तरह जो नोवल कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो चाइना में स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उसी तरह ये सार्स है ये भी चाइना में ही स्टार्ट हुआ था. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्रांसमिट हुआ गया है फ्रॉम अ बैट टू सीवेट एंड सीवेट टू सीवेट से फिर ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ गया है. मतलब क्या ये जूनोटिक डिजीज है जो हमने पहले आपको बताया. और मोर देन टोटल 8,000 टोटल लोगों को इन्फेक्ट किया गया था, उस इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम पे, जिसमें से 774 लोगों का डेथ हुआ था. और साथ ही साथ ओवरऑल अगर फर्टिलिटी रेट की देखा जाए बात करें तो 9.6% फर्टिलिटी रेट उस टाइम पे हुआ था. नेक्स्ट इज द मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम मर्स कहते हैं, जो हुआ था 2012 में 2012 में. इट originated in Saudi Arabia. Remember, जो SARS था वो first originated in China and the MERS was first originated in Saudi Arabia. It was transmitted from camel to human. ऐसा माना जाता है कि ये जो MERS है ये camel से human में ट्रांसमिट हुआ गया. एंड उस टाइम पे मोर देन 2,400 केसेस देखा गया है, जिसमें से 858 लोगों का डेथ हो गए थे. एंड ओवरऑल देखा जाए तो उस टाइम पे जो फर्टिलिटी रेट थे वो था 34.4% देखा गया था फर्टिलिटी रेट. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोवल कोरोना वायरस, जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी. 2019 नोवल कोरोना वायरस वाज आल्सो ओरिजिनेटेड इन द चाइना. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरस है ये भी ट्रांसमिट होते हैं बाय बैट. इस चीज में अभी रिसर्च आगे चल रहे हैं. एंड द टोटल इन्फेक्टेड इन द वर्ल्ड, ये जो वायरस से टोटल इन्फेक्ट किया गया है इन द वर्ल्ड, इसका जो अगर कैलकुलेशन किया जाए अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल जो कंफर्म्ड है दैट इज 23,47,875 and that is 1,61,402. and total infected in India is जो confirmed है that is 16,116 and the death is 519. अब ऊपर जो बताया मैंने आपको वर्ल्ड का बताया, द नेक्स्ट वन इज अबाउट द इंडिया. एंड जो अभी ये मैंने आपको डाटा बताया है ये है 19 अप्रैल 2020. अब हमने वायरस का हिस्ट्री भी पढ़ लिया. अभी हम ये देखते हैं कि ये वायरस है, इसका कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं ये. दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस. सबसे पहले ये ऊपर जो मैंने बनाया है दैट इज दिस इज ह्यूमन कोरोना वायरस. ह्यूमन कोरोना वायरस के कितने टाइप्स है? 6 टाइप के, टोटल 7 टाइप्स के देखा जाए. सबसे पहला है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, जो कि है अल्फा वायरस. सेकेंड इज ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 विच इज अ बीटा वायरस. Third is severe acute respiratory syndrome, which is SARS-CoV-2, which is a beta virus. Fourth one is HCOV, that is human coronavirus NL63. NL represent here for Netherlands. सबसे पहले जो इन्फेक्शन देखा गया है वो नीदरलैंड में देखा गया है, इसलिए इसे यहाँ पे हम NL वर्ड हमने यूज किया गया है फॉर टू डिनोट नीदरलैंड. And this is an alpha virus.
Fifth is human coronavirus HKU1. Here HK represent Hong Kong. सबसे पहले जो ये वायरस का जो इन्फेक्शन देखा गया है, जो पेशेंट सबसे पहले देखा गया है वो हांगकांग में देखा गया था, इसीलिए इस यहाँ पे हमने यहाँ पे HK एज HK यूज करते हैं फॉर डिनोटिंग, एंड इट इज ऑल्सो है बीटा वायरस. And the sixth one is MERS, that is Middle East Respiratory Syndrome, which is a beta virus. And the last and the most important is a SARS-CoV-2, which is a severe acute respiratory syndrome, which is also a beta virus. Why it is यहाँ पे जो लास्ट में जो 2 दिया गया है वो 2 क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो सार्स कोव है ये प्रीवियसली पहले भी हो चुका है, तो समहाउ रिलेटेड ही है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे दोबारा 2 दिया गया है कि वापस ऐसा माना जाता है कि समहाउ रिलेटेड ही है, इसलिए इसको यहाँ पे 2 दोबारा हुआ गया है, इसलिए इसको 2 दिया, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं. एंड ओवरऑल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस में से टोटल आपको जितना टोटल 5 इज जो 5 जो वायरसेस है दे आर बीटा वायरसेस एंड ओनली 2 ऑफ देम आर अल्फा वायरस, जो है विच वन इज ह्यूमन कोरोना वायरस 229E एंड NL63, बोथ आर अल्फा वायरस एंड रेस्ट आर बीटा वायरस. नेक्स्ट, अब हमने ह्यूमन क्लासिफिकेशन देख लिया, कोरोना वायरस की ह्यूमन क्लासिफिकेशन जो कि 7 टाइप्स के हैं. अब हमने वायरस देख लिया, अब हम देखते हैं कि वायरस के ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसे ये जो इन्फेक्शन है दे आर मतलब वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हो रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन ही स्प्रेड हो रहे हैं. तो ये कैसे स्प्रेड हो रहे हैं? सबसे पहला, दे आर स्प्रेड बाय ए क्लोज कंटैक्ट, क्योंकि जो ये वायरस है ये एरोसोल्स में रहते हैं, एयर में सरवाइव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स में सरवाइव करते हैं कुछ टाइम्स के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसलिए क्लोज कांटेक्ट के थ्रू भी ये वायरस स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, वन अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन. सेकेंड, कफ के थ्रू वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम ए वन पर्सन टू अदर. एंड सेकेंड, बाय स्नीजिंग के थ्रू, द स्नीजिंग जो हम स्नीज करते हैं उसमें वायरस कंटेन करते हैं. अब जब वायरस रिलीज हुआ कोई ऑब्जेक्ट में, चाहे उसी समय तुरंत वायरस रिलीज हुआ स्नीजिंग के वजह से, मतलब स्नीजिंग के थ्रू जैसे वायरस रिलीज हुआ, अब क्या हुआ उसी समय कोई हेल्दी पर्सन आपके पास है, तो वायरस को ऑब्वियसली एक लिविंग बॉडी चाहिए, तो वो स्नीज करते टाइम पे वो जो कंटामिनेशन जो है वो क्या करेगा, वो ह्यूमन के बॉडी में जाएगा, एंटर करेगा, चाहे वो नोज के थ्रू हो, चाहे वो माउथ के थ्रू हो, चाहे आइज के थ्रू हो. अब वो एंटर करेगा एंड अपना पैथोजेनेसिस कॉज करता है, फर्दर वो अपना डिजीज कॉज करता है. तो ये भी एक जरिया है जिसके थ्रू क्या करता है ये वायरस स्प्रेड होते हैं. ये मतलब बहुत सारे रूट हैं, लेकिन ये जो 3 जो मैंने बताया आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू ये वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड. नेक्स्ट इज सिम्टम. अब क्या हुआ, कोई पर्सन है, हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ. अब हुआ तो हम कैसे देखेंगे कि इसको इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू हम पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट. जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, द पर्सन में गेट फीवर और इट में गेट कफ. थर्ड वन इज सोर थ्रोट, गले में दर्द होना. फोर्थ वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत ही होना. लास्ट वन इज द ड्राई कफ प्रोडक्शन, जो कफ का प्रोडक्शन होते हैं ड्राई कफ प्रोडक्शन होते हैं, ये है इसका मेन सिम्टम्स. एंड the next is vulnerable group. Here vulnerable group means risk people. किस पर्सन को, किस पीपल, किस ग्रुप को ये इन्फेक्शन डिजीज ज्यादातर होने का चांसेस है. कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं हो पाते हैं, जल्दी नहीं होते हैं. कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं जैसे कि एल्डर 70 ईयर्स से ज्यादा लोगों, जो 70 ईयर्स एज से जो ज्यादा होते उम्र के होते हैं, उनको ये डिजीज ज्यादा होने का मतलब रिस्क है. दे आर रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल जिसे ये डिजीज होने का चांसेस होते हैं. सेकेंड इज हार्ट डिजीज, जिसे हार्ट प्रॉब्लम है,
हार्ट का डिजीज है उसे ये बीमारी होने का ज्यादा चांसेस है। मीन्स अगर होने का चांसेस, इट डजंट मीन कि तुम आप घर के अंदर रहते ही हो जाओगे। मीन्स इफ यू आर गोइंग एंड इन कंटेक्ट विद एन अनहेल्दी पर्सन, देन आपको ये जल्दी चांसेस है, होने का चांसेस है। एंड द थर्ड इज द लंग डिजीज। लंग डिजीज इट इंक्लूड asthma, it include asthma and the chronic kidney disease, chronic liver disease एंड क्रोनिक न्यूरॉन कंडीशन। ये सब कंडीशन, ये जो जितना भी ये प्रॉब्लम्स है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ये सब प्रॉब्लम किसी एक पर्सन को है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को है, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, टुवर्ड्स द वायरस। मतलब उनको वायरस, ये जो वायरस का जो डिजीज होने का जो चांसेस है, ज्यादातर इन पर्सन को होने का चांसेस है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पैथोजेनेसिस। What does mean a pathogenesis? Pathogenesis means the manner of development of disease. वायरस कैसे एंटर किया हमारे बॉडी में, एंड हमारे बॉडी में जो डिजीज का जो डेवलपमेंट हुआ वो किस तरीके से हुआ, किस रूट से हुआ, किस वजह से हुआ, उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब क्या होता है, जैसे वायरस अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, वैसे ही हर वायरसेस के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। तो जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इट इज 14 डेज। 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, जो उनका पोर्टल ऑफ एंट्री है, दे आर डिफरेंट। सो जो कोविड-19 है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री है नोज, आईज एंड माउथ। इन 3 रूट्स के थ्रू वायरस कैन इनटू अ बॉडी। अब क्या होता है, अब इसका अगर हम इसका फॉलोइंग मैनर की तरफ मैनर देखें कि कैसा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी अनहेल्दी पर्सन से, चाहे वो स्नीज के थ्रू, चाहे वो कफ के थ्रू पेशेंट एंटर किया, वायरस बॉडी में एंटर किया। एंटर करने के बाद अब क्या होता है, जैसे ही वायरस एंटर किया अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में, अब दे डायरेक्टली टारगेट रेस्पिरेटरी ट्रैक। हेल्दी पर्सन का रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो वायरस एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में दे डायरेक्टली टारगेट रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, दे अटैक एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी ट्रैक में दे डायरेक्टली अटैक करते हैं एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई कंटेन करते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, एंड जो टाइप 2 होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्ट गैस एक्सचेंज से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या काम करते हैं, गैस एक्सचेंज करने में हमें हेल्प करते हैं। एंड जो 2 है, जो टाइप 2 सेल्स है, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सर्फेक्टेंट का काम क्या है, ये जो कोलैप्स होता है, जो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कोलैप्स प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये दोनों सेल में जाके वो अटैक करता है। अब वायरस ने एंटर किया, जैसे कि ये जो येलो सेल है, यहाँ पे ये दिस वन इज वायरस। जैसे वायरस ने अब क्या किया, वायरस ये जो पिंक कलर के जो आप देख रहे हैं, दिस इज एंड दिस वन इज इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस क्या करता है, अब दे स्टार्ट देयर वॉक। अब जैसे ये एंटर कर लिया, अब ये अपना काम शुरू कर देंगे। क्या करता है ये, सबसे पहले अपने स्पाइक के थ्रू क्या करता है, ये वायरस जो सेल है, सेल में क्या करता है, अटैच करते हैं। ये सेल है, सेल में अटैच करते हैं। अटैच कहाँ करते हैं, जो रिसेप्टर है, ये सेल है, सेल कंटेन करते हैं रिसेप्टर। ठीक है, सेल रिसेप्टर कंटेन करते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है ACE2। ACE2 मीन्स A represent for angiotensin, C is for converting, E is for enzyme। एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कंटेन, ये क्या करता है, सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो ये सेल सरफेस है, सेल है जिसका सरफेस में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर को ये वायरस ने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद अब क्या करता है, अटैचमेंट होता है। इसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर लिया, दूर से ही इसको पहचान के उसको सिग्नल मिल गया। अब क्या करता है, ये वायरस इसमें इसके सरफेस में आके अटैच्ड हो जाता है। अटैच्ड हो गया, अब अटैच होने के बाद क्या करता है, ये सेल इन्फेक्ट हो गया।
अब क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा ये डायग्राम देखिए, इसमें दो टाइप का पिक्चर्स देख रहे हैं आपको, एक रेड कलर के है, एक ब्लैक कलर का। जो ये रेड कलर का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वायरल आरएनए। ये जो वायरस है, ये वायरस ने इस सेल में, ये जो सेल है वो यही सेल है। यहाँ पे मैंने आपको अलग से बताया, एक प्रोसेस बता रही हूं मैं आपको। तो जो ये वायरस ने यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज किया, जो कि ये रेड कलर का है, वायरल आरएनए। अब क्या करता है, ये वायरस है, वायरस को एक लिविंग बॉडी चाहिए, लिविंग सेल चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए अपने सर्वाइव के लिए, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो आप क्या, वायरस इस यहाँ पे एंटर कर लिया, अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया। अब क्या होता है, हर एक बॉडी में हमारे जो सेल्स होते हैं, हर एक सेल्स की अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। हर किसी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, अब ये वायरस है, यहाँ पे एंटर करने के बाद अब क्या करता है, जो ये नॉर्मल सेल का जो फंक्शन है, अब इस नॉर्मल सेल का फंक्शन को ये डिस्टर्ब करते हैं और उसको फोर्स करते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद, कि ये हेल्दी प्रोटीन, जो इसका जो नॉर्मल प्रोसेस जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन ना बनाए और इसी वायरस का ही प्रोटीन को बनाए। मीन्स इसका जो मशीन है उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको उल्टा कर देता है, ताकि वो नॉर्मल हेल्दी प्रोटीन ना बना के वो वायरल प्रोटीन बनाने। अब क्या करता है, जो सेल को इसने इन्फेक्ट कर दिया, रिलीज कर दिया, तो अब क्या करता है, ये वायरस अपना ये सेल क्या करता है, ये वायरल प्रोटीन बनाने लगते हैं। अब वायरल प्रोटीन बनाने लगते हैं, अब क्या करता है, ये वायरस क्या था, आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब क्या करता है, ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने लगता है, दैट इज वायरल प्रोटीन बाय ए प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, अपना वायरस का डिफरेंट कंपोनेंट्स बनने लगते हैं। अब क्या करता है, वायरस मल्टीप्लीकेशन होने लगते हैं। एक ही सेल में बहुत डिफरेंट वायरस क्या करता है, अपना अपना कंपोनेंट्स प्रोटीन बनाया, अब क्या करता है, वायरस मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब एक सेल में बहुत सारे वायरस का मल्टीप्लिकेशन होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली एक सेल में हर एक सेल का, हर एक, जैसे हमारे पास कोई किसी भी चीज है, हमारे पास कुछ भी बैग हो, तो हम एक बैग में भी चाहे लिमिटेड अपना सामान है, तो क्या होता है, अल्टीमेटली उसके बाद जब ओवरफ्लो हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो उसी तरह जो सेल होते हैं, सेल में बहुत सारे वायरस ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब अल्टीमेटली ये सेल क्या हो गया, फिल अप हो गया, बहुत ज्यादा ही फिल अप हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये सेल है, अब ये सेल क्या करता है, रैप्चर करता है, फट जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये वायरस है अब निकलने लगता है। वो इन्फेक्टेड सेल फट गया, अब वो वायरस क्या हो गया, वो निकल गया, निकल के कहा, ब्लड में यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पूरा स्प्रेड हो गया। अब क्या होता है, जो भी वायरस जो रिलीज हुआ, ये हर एक वायरस क्या है, कंप्लीट वायरस है। जो इनिशिएट जो वायरस, ये पहला जो वायरस था, उसी की तरह ही पूरा फंक्शन, सेम फंक्शन, यही जो लास्ट में जो वायरस होता है, वो भी वैसा ही कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है। अब क्या करते हैं, देखो, ये वायरस, बहुत सारे वायरस बर्स्ट हुआ, फट के निकल गया। अब हर एक वायरस क्या करता है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल को फिर टारगेट करता है। उस डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करता है, फिर उसी में सेम प्रोसेस होते हैं, जिसमें ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जहां पे जाके अटैच करते हैं, अपने आरएनए रिलीज करते हैं। आरएनए रिलीज करने के बाद आरएनए से क्या करते हैं, प्रोटीन का बनाते हैं, एबनॉर्मल आरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर बर्स्ट होता है, फिर वो प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. Soon I'm going to upload a new video in the same topic which will be in detail. So guys, if you like my video, don't forget to like and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.